Okay. So, Assalamu alaikum everyone. Hope that all of you are fine and doing well. Um, Thank you so much for finding time and visiting today's webinar. I, Mariam Khalid, the ambassador of Al Misbah Foundation, welcome you all on behalf of our team and foundation. Most of you must be aware of this foundation, but for those who didn't attend the previous webinar, I will give you a brief intro of this foundation. It is basically a platform for young psychologists and for those who want to groom in their field. It provides opportunities to enhance their skills. Along with this, it also provides career counseling, motivational talks, sessions, webinars like this, internship programs, and mental health awareness, etc. So let's come to the this webinar. As we all know that unfortunately, harassment and child abuse has become a major issue of concern these days, and people mostly feel hesitant to talk about it openly. So the purpose of today's webinar is to spread awareness for these issues and discuss their psychological factors. This will be discussed in detail by our speakers, Ma'am Samia Azim, who is a psychologist and currently she is doing advanced diploma in clinical psychology from Namal University. She will discuss about harassment, and then our speaker Sir Arish Kamal, who is a clinical psychologist and is a gold medalist, mashallah. He is currently doing MS in clinical psychology. He will talk about the psychological factors of child abuse. So before turning it over to the speaker, let me tell you one thing, that there will be a question answer session at the end. You can freely ask your questions. And if you have any question during the webinar, you can write it down in the chat box. All of them will be answered in the end of the webinar, inshallah. And it's a humble request to not to unmute your mic while the speakers are presenting, just to ensure the quality of sound. Hope that you guys will find it fruitful and will enjoy it. So yeah, it's time to turn over to the speaker, Samia Azim. Yes, ma'am. Assalamu alaikum. Thank you so much for such a great introduction, Mariam. Assalamu alaikum to all of you who have joined us. Thank you for your precious time. As we have discussed that the previous topic, relation between physical and mental health. Now we are going towards our second webinar, harassment and the psychological factors of child abuse. First, we will talk about harassment. Harassment, बहुत से लोग इस बारे में जानते भी होंगे, कॉमन फैक्टर्स है, टॉपिक कॉमन पॉइंट है ये हमारी सोसाइटी में, हमारे एनवायरनमेंट में. लेकिन इसके साथ ही एक सोशल टैबूस होता है जिसको हम लोग इस बारे में बात ही नहीं करते, हम लोग इस बारे में डिस्कस ही नहीं करते. अगर कोई ऐसा पॉइंट हरासमेंट, सेक्सुअल अब्यूज, सेक्स, इन चीज़ों के बारे में बात की जाए तो उस इंसान को चुप करवा दिया जाता है या ये कह दिया जाता है कि दे आर टॉकिंग अबाउट नॉनसेंस. ये हमारा कॉमन फैक्टर है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए. फर्स्ट हम लोग हरासमेंट की तरफ चलते हैं. हरासमेंट का हम लोग एक बेसिक इंटरव्यू देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं. हरासमेंट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर्स ऑफ एन ऑफेंसिव नेचर. इट इज कॉमनली अंडरस्टूड as behavior that demeans, humiliates, or embarrasses a person. And it is characteristically identified by its unlikelihood in terms of social and moral resemblance. Harassment हमारा क्या होता है, बहुत से ऐसे offensive behaviors या offensive nature होती है एक individuals की, जिसमें हम दूसरे किसी भी इंसान को humiliate करते हैं, ठीक है, उसको embarrass करते हैं, उसको उसकी जो एक अपना dignity होती है, एक प्राइड होता है, हम लोग उसी की नजर में वो लॉस हो जाती है. इस तरह से एक इंसान उसको ट्रीट करता है और बिहेवियर शो करता है. हरासमेंट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. इट इंक्लूड्स एन अनवांटेड फिजिकल और वर्बल बिहेवियर दैट ऑफेंड्स और ह्यूमिलेट्स यू. ये फिजिकल भी है, वर्बल बिहेवियर है, अनवांटेड है, अनएक्सेप्टेबल है, अनएथिकल है ये हमारी सोसाइटी में, जो कि नहीं होने चाहिए. जो दूसरे इंसान को, किसी और पर्सन को ह्यूमिलेट कर रहे हैं, वो उसको मेक देमसेल्फ फील अशेम्ड एंड फुलिश बाय इंजरिंग. हरासमेंट्स होती क्या है, कॉमन है, हमारी स्ट्रीट्स में ये हो रही हैं, हमारी इंस्टीट्यूट्स में ये हो रही हैं, अब ऑर्गेनाइजेशंस में हो रही हैं, वर्क प्लेसेस में हो रही हैं, बहुत सी ऐसी प्लेसेस में हो रही हैं जहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं. अब हम लोग अगर देखें कि हरासमेंट्स होती कौन कौन सी हैं, वर्बल रिटन हरासमेंट्स हैं. टाइप्स ऑफ हरासमेंट की अगर हम लोग बात करें, वर्बल और रिटन हरासमेंट्स हैं, फिजिकल हरासमेंट है, विजुअल हरासमेंट है, वर्क प्लेस हरासमेंट है हमारे पास, और बुलिंग है. वर्बल और रिटन हरासमेंट की हम लोग अगर बात करें
तो ये मोस्ट ऑब्वियस हैरेसमेंट है हमारे पास, जिसमें हम लोग किसी भी इंसान को मेल सेंड कर रहे हैं, उसमें ऑफेंसिव जोक्स हैं, ग्राफिक्स हैं, उसकी रिलीजन के बारे में, उसकी रेस के बारे में, उसको हम लोग अनएक्सेप्टेबल उसके साथ टॉक कर रहे हैं, उसको इस तरह के मैसेजेस भेज रहे हैं, उसके साथ इस तरह बात कर रहे हैं, जो कि उसकी कंसेंट नहीं है इन सब में, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं। Repeatedly requesting dates और sexual favors in persons or through text. किसी को बार बार डेट्स के लिए बोलना, उसको सेक्सुअल फेवर्स उससे मांगना, उसको टेक्स्ट करना, इरेलीवेंट, इस तरह की एक्ट्स करना। आस्किंग अबाउट फैमिली हिस्ट्री ऑफ इलनेस और जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अच्छा, ये एक बहुत कॉमन पॉइंट है। मोस्टली ऐसा होता है कि हैरेसमेंट अब वर्बल और रिटन, जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दिए कि उसमें तो आप डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है आपका उसका विक्टिम्स के साथ, कि आप उसको ऑफेंसिव जोक्स दे रहे हो, आप उसको ग्राफिक्स शो कर रहे हो इस तरह के, उसको डेट्स और सेक्सुअल फेवर्स की मांग रहे हो। यहाँ पे तो आपका इंटरेक्शन डायरेक्ट हो रहा है। मोस्ट केसेस में ऐसे होता है कि कुछ फैमिली हिस्ट्रीज होती हैं हमारे पास, जैसे किसी फैमिली में कोई इलनेस है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, कोई डिस्टर्बेंस है, ठीक है, उसकी बेस पे हम उसकी फैमिली को भी हरास करें। यहाँ पे कॉमन एग्जांपल दिए जैसे ट्रांसजेंडर्स हैं। ट्रांसजेंडर की एक ये कॉमन है, नेचुरल फिनोमेना है, उसमें कोई भी खुद अपनी मर्जी से ट्रांसजेंडर पैदा नहीं हुआ, ना ही उसके पेरेंट्स ने पैदा किया। अब यहाँ पे हमारी सोसाइटी में एक क्या होता है कि उनके साथ तो हम लोग अनएथिकल बिहेवियर शो करते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते अपने सोसाइटी में, उसके साथ साथ हम उनकी फैमिली को भी बहुत ज्यादा लेट डाउन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि किसी ट्रांसजेंडर का कोई फादर जा रहा है, कोई उसका भाई जा रहा है, उसकी फैमिली में से कोई लेडीज जा रही हैं, तो हम लोग उनको उनके इंट्रोडक्शन से हम लोग नहीं बुलाएंगे। हम क्या कहेंगे कि वो ट्रांसजेंडर का फलां ट्रांसजेंडर का बाप जा रहा है, फलां ट्रांसजेंडर का भाई जा रहा है। ये चीजें बहुत ज्यादा हमारी, तो ये भी आप उनको हरास कर रहे हो। आप ट्रांसजेंडर के साथ तो बुरा बिहेव कर रहे हो, आप उसकी फैमिली के साथ भी कर रहे हो। नेक्स्ट, मेकिंग डिरोगेटरी कमेंट्स अबाउट समवन्स डिसेबिलिटी और एज। आप किसी भी इंसान में अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो भी नेचुरल है, कोई अपनी मर्जी से अपने अंदर डिसेबिलिटी नहीं लाता। कोई एज फैक्टर कुछ इस तरह से आ रहा है, जैसे बहुत से बूढ़ों का हम लोग मजाक उड़ा लेते हैं। वो कहते हैं ना कि एक जब एज में ग्रोइंग एज होती है तो आपका माइंड लेवल, माइंडसेट आपका चेंज होता है, तो आपकी नेचर और आपकी वो एक पर्सनालिटी भी चेंज होती है। उसमें आप उनको अपनी तरफ से मजाक करना, उनको उन पे डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड्स या क्रिटिकल कमेंट्स पास करना, ये सब हरासमेंट्स हैं जिनको बहुत से लोग उसको मजाक में लेते हैं, एडवेंचरस में लेते हैं, फन में लेते हैं, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि अगले बंदे को हरास करें आप उसके मेंटल लेवल, मेंटल जो हेल्थ है, आप उसको डैमेज करें हरास करके। नेक्स्ट, फिजिकल हरासमेंट अगर हम लोग देखें, फिजिकल हरासमेंट माइट बी अ लिटिल हार्डर टू रिकॉग्नाइज बट इट कैन समटाइम्स बी वेरी सब्टल। फिजिकल हरासमेंट बहुत कॉमन है, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज बहुत से लोग नहीं कर पाते, मतलब उनकी ये समझ से बाहर ही होती है, वो इतनी इजीली उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। उनमें जो एक होता है ना ग्रैस्प करना, वो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ल्यूड हैंड गेस्टर्स आप कर रहे हैं, कॉन्वे कर्स वर्ड्स आप कर रहे हैं, किसी तरह से टच से या कोई भी इनअप्रोप्रिएट गेस्टर्स आप शो कर रहे हैं। अनवांटेड टचिंग हो गया, पर्सन को उसके कपड़ों को टच करना, पर्सन को टच करना उसकी कंसेंट के बगैर, ये हैरेसमेंट है। किसी भी इंसान से आप बात कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट में, कहीं पे भी वर्क प्लेस में है, तो एक बात करते हुए या एक सिटिंग एरिया में एक फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए। अगर आप उस डिस्टेंस को क्लोज करके, इतना क्लोज आप उस इंसान के पास खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं कि अगला बंदा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो वो भी हरासमेंट होगी कि आप उसको फिजिकल हरास करें। फेशियल एक्सप्रेशंस इस तरह के देना कि जो इनअप्रोप्रिएट और अनएक्सेप्टेबल हों, जिससे आपकी वियर्ड और सेक्सुअली जिसे कहते हैं ना ओरिएंटेशंस होती हैं, उस तरह के फेशियल एक्सप्रेशंस देना, ये भी हरासमेंट है। ये छोटी बात नहीं होती, जिनको बहुत से लोग अनकॉमन समझ के या कहते हैं कि छोड़ो वो खुद ही ठीक हो जाएगा, अवॉइड कर देते हैं। दिस इज टू मच। किसी को बगैर कंसेंट के आप उसको इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, ये हरासमेंट है। डिग्रेडिंग लैंग्वेज यूज करना, गलत म्यूजिक इस तरह के कुछ होते हैं आप प्ले कर दें। फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई एक्सेप्ट अच्छी जगह है, कोई अच्छी रिस्पेक्टेबल प्लेस है कोई, वहाँ पे आप बहुत अजीब तरह के अगर आप म्यूजिक प्ले करेंगे तो वो भी हरासमेंट होगी। विजुअल हरासमेंट की अगर हम लोग बात करें,
Visual harassment is probably the hardest to spot because it is most objective and really requires you to put yourself in the shoes of other person. Visual harassment में ये होता है कि हार्ड है, मतलब बहुत कम लोगों में ये होता है, बहुत कम लोग ये फेस कर रहे हैं. इसमें ये होता है कि अगले बंदे की जगह पे खड़े होके आपको वो चीज़ समझ आती है. इजीली आप उस चीज़ को जज नहीं कर पाते. आप वल्गर लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, कपड़े आपने इस तरह के पहने हुए हैं, क्लॉथ्स ऑफेंसिव या इनअप्रोप्रिएट क्लॉथ्स हैं एनवायरनमेंट के लिहाज से. आप कोई भी पिक्चर्स या पोस्टर्स इस तरह के डिस्प्ले कर रहे हैं जो इनअप्रोप्रिएट हैं, सेक्सुअल नेचर के हैं, वो विजुअल हैरेसमेंट होगी. उसके बाद आप टेक्स्ट या ईमेल्स सजेस्ट कर रहे हैं जो इस तरह की शो कर रहा है, पोर्ट्रे कर रहा है, सेक्सुअली पोर्ट्रे कर रहे हैं या एक्सेप्टेबल उसमें चीज़ें नहीं हैं, वो भी फिर विजुअल हैरेसमेंट है. उसके बाद वायलेंट वीडियोस और ये जो पोर्नोग्राफिक वीडियोस हैं आप डिस्प्ले कर रहे हैं, शो कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, वो भी विजुअल हैरेसमेंट है. और डेरोगेटरी इमेजेस और वायलेंस ड्राइंग अगर आप करें तो ये सब विजुअल हैरेसमेंट्स हैं. अब मोस्ट कॉमन जो हमारे पास आ रही है वो वर्क प्लेस हैरेसमेंट है. वर्क प्लेस हैरेसमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, कॉमन हैं और कहीं जगह पे ऐसा होता है कि इंटेंशनली वर्क प्लेस हैरेसमेंट्स हो रही होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स. जैसे फर्स्ट अगर हम लोग देखें डिस्क्रिमिनेटरी फॉर्म्स हैं. इसमें बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने देखी है जहां पे इंटेंशनली हरास किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशंस, जिसमें रेशियल हरासमेंट्स आ गई, सेक्सुअलिटी बेस्ड हो गया कि आप उनकी रेस के बेस पे, उनके कल्चर के बेस पे, उनकी जेंडर के बेस पे उनको हरास किया जाता है, रिलीजन के बेस पे या कोई स्पेसिफिक डिसेबिलिटी है उसकी बेस पे उनको हरास किया जाएगा. नेक्स्ट सेक्सुअलिटी बेस्ड हरासमेंट, उसमें एक एम्प्लॉय को हरास किया जा रहा है उसकी सेक्शुअल्स के बेस पे, जैसे होमोसेक्सुअल्स हैं, बायोसेक्सुअल्स, एसेक्सुअल्स, ये सब कॉमन है, नेचुरल प्रोसेस है. इसमें अक्सर ऐसा होता है कि एक इंडिविजुअल के अपने ऑन पे नहीं होता कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाए, नेचुरल है, तो वो उसको हरास किया जाएगा कि ये हेट्रोसेक्सुअल है तो हम इसको हरास करेंगे. यहाँ पे वो वर्क प्लेस ये चीज़ हो जाता है कि यहाँ पे फर्ज कर गया है कि अगर ये हेट्रोसेक्सुअल है या होमोसेक्सुअल तो हमें इसको हरास करना ही करना है. इसके बाद रिलीजन बेस्ड हरासमेंट, एज बेस्ड हरासमेंट, एज की बेस पे बहुत ज़्यादा हरास किया जाता है वर्क प्लेस पे. जैसे ट्रेनर्स हैं तो उनकी एज कम होगी तो सीनियर्स उनको अक्सर बुली करते हैं, उनको हरास करते हैं एडवेंचर के तौर पर, फन के तौर पर. नेक्स्ट डिसेबिलिटी बेस्ड हरासमेंट है कि अगर एक पर्सन है उसमें कोई जैसे डाउन सिंड्रोम्स के पर्सन्स होते हैं, अगर वो कोई काम कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट में, वर्क प्लेस में, तो उनको हरास किया जाता है, उनकी डिसेबिलिटी के बेस पे उनका मजाक उड़ाया जाता है. बहुत से लोग तो इसको एज अ फन लेते हैं कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो मजाक नहीं होता, आप उनको हरास कर रहे हो उनकी डिसेबिलिटी के बेस पे. उसके बाद रिलीजन बेस्ड हरासमेंट्स हैं कि जैसे बहुत सी कंट्रीज में जो मुस्लिम्स रह रहे हैं उनको हरास किया जाता है जानबूझ के, उनकी लड़कियों को, उनके लड़कों को भी इवन हरास किया जाता है. अगर कहीं पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, तो फॉरेन कंट्रीज जो हैं वो जैसे मुस्लिम के इवेंट्स होते हैं, रमज़ान हो गया, ईद होगी, उनको छुट्टी नहीं देनी जान के, उनको तंग करना, टीज करना, ये हरासमेंट होगी रिलीजन के बेस पे कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है कि ये मुस्लिम हैं, ये क्रिश्चियंस हैं, ये इनका ये मजहब है, उस बेस पे उनको हरास करते हैं. पर्सनल हरासमेंट में होता है कि आपका एक डायरेक्ट इंटेंशन है, आप फेवरेटिज्म कर रहे हो. जैसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है कि फेवरेटिज्म की जाती है, तो एक पर्सन को आप फेवरेटिज्म करके उसको राइट्स दे रहे हो, उसको फैसिलिटीज दे रहे हो, और ऑन द अदर हैंड जो चीज़ वो डिजर्व कर रहा है दूसरा पर्सन, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है लेकिन आप उसको वो प्रोवाइड नहीं कर रहे फैसिलिटीज, आप उसको ऑफेंसिव जोक्स कर रहे हो, उसको पर्सनल ह्यूमिलेट कर रहे हो, तो इसमें पर्सनल हैरेसमेंट होती है कि आपका एक डायरेक्ट इंटेंशन है, आपने एक स्पेसिफिक टारगेट रखा हुआ है उस पर्सन को. फिजिकल हैरेसमेंट वही कि आप फिजिकली टच कर रहे हो, फिजिकली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर शो कर रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो, उसको हिट कर रहे हो, किक कर रहे हो, ये फिजिकल हैरेसमेंट्स है. पावर हैरेसमेंट, जिसमें आप पावर की बेस पे कर रहे हो कि आप अगर हाई लेवल पे हो और आपके नीचे जूनियर्स हैं, आपके इंटर्नीज हैं, ट्रेनीज हैं, आप उनको जान के ओवरबर्डनाइज कर रहे हो, उनको टीज कर रहे हो, उन पे हुक्म चला रहे हो, उन पे ऑफेंसिव बिहेवियर आप शो कर रहे हो, तो वो पावर हरासमेंट है. साइकोलॉजिकल हरासमेंट,
बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हम उनको फिजिकली उनको नहीं कर रहे हरास कर रहे हैं, लेकिन हम उनको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। हम लोग उनके बारे में र्यूमर्स फैला रहे हैं कि उसने ये किया, हालांकि वो ऐसे नहीं है। फॉर एग्जांपल मीटिंग में एक पर्सन मीटिंग में वैलिड पॉइंट बोल रहा है, वो एक्सप्रेस कर रहा है अपना पॉइंट कि ये ठीक है, वो एक्सेप्टेबल भी है, लेकिन फिर भी आप उसको निग्लेक्ट करो, आप उसको बोलो कि नहीं ये पॉइंट गलत है, तो वो उसको साइकोलॉजिकल हरास कर रहे हो, कि आप उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे हो। इसी तरह सेक्सुअल हरासमेंट के आप सेक्सुअल फेवर्स मांग रहे हो, आप उनको ड्रेसेस के इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स पास कर रहे हो, आप उनसे डेट्स की डिमांड कर रहे हो कि हमारे साथ कॉफ़ी पीने चले, हमारे साथ लंच पे चलें, हमारे साथ ऑफिस के बाद टाइमिंग पे यहाँ पे घूमने चलें। ये सेक्सुअल हरासमेंट्स हैं। नेक्स्ट, साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग में इंटरनेट एंड सोशल मीडिया आप यूज़ करना चाहते हो, जिसमें आप अगले बंदे को डिस्टर्बिंग और ह्यूमिलेटिंग मैसेजेस सेंड कर रहे हो और उनको कंप्लेंट्स कर रहे हो, उनके टाइम नहीं है, लाइक रात को 12 बजे आप किसी को कॉल कर रहे हो और मेरा दिल चाह रहा है बातें करने का। ये सब चीजें साइबर बुलिंग में। अब इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, बुलिंग। बहुत से लोग जो है वो हरासमेंट और बुलिंग को सेम समझ लेते हैं। ये सेम नहीं है। बुलिंग इज समथिंग डिफरेंट। बुलिंग में एक एग्रेशन होते हैं, एक पावर अनबैलेंस होता है, जिसमें पर्सन जो है वो उसको तंग करता है फिजिकली। इसमें बहुत ज्यादा है कि उसको हिट करना, उनसे उनको अपनी एडवेंचरस और अपनी जो है ना सेटिस्फेक्शंस के लिए आप अगले बंदे की पावर, अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हो। आप सुपीरियर हो तो इस चीज का आप फायदा उठा रहे हो। फिजिकल बुलिंग लाइक आप अगले बंदे को फिजिकली फोर्स कर रहे हो, एग्रेशन बिहेवियर शो कर रहे हो, हिट कर रहे हो अगर वो आपसे जूनियर है। जैसे रैगिंग्स में यूनिवर्सिटीज में, काफी यूनिवर्सिटीज में ये चीज काफी कॉमन हो गई थी कि अगर सीनियर्स हैं तो उन्होंने जूनियर्स के साथ इस तरह का बिहेव करना है, उनसे डिफरेंट एक्ट्स करवाने हैं, और अगर वो नहीं करते थे तो उनको मारा जाता था, उनके साथ गलत बिहेवियर शो किया जाता था, उनको बहुत गलत किस्म के डेयर्स दिए जाते थे कि ये आपने करने हैं। वर्बल बुलिंग इसी तरह से आती है कि आप एक बार बंदे को वर्बली अटैक कर रहे हो, आप उसके गलत नाम ले रहे हो, आप उसके बारे में गलत कमेंट्स पास कर रहे हो, एग्रेशन आप शो कर रहे हो। सोशल रिलेशनल बुलिंग, जैसे आप किसी को हर्ट कर रहे हो, समवन लाइक आप उसके बारे में र्यूमर्स क्रिएट कर रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो, उसके बारे में गलत गॉसिप्स कर रहे हो, ये सब आ रहे हैं। साइबर बुलिंग वही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप उसको यूज कर रहे हो, किसी भी पर्सन को एम्बैरस कर रहे हो, आप उसकी रेपुटेशन को डैमेज कर रहे हो, उसको ऑनलाइन थ्रेट्स एंड टेक्स्ट मैसेज आप उसको सेंड कर रहे हो, ये सब। अगर हम लोग इनका डिफरेंसेस देखें तो डिफरेंसेस में ये है कि हैरेसमेंट जो है उसमें फिजिकल कंपोनेंट बहुत ज्यादा है, उसमें कॉन्टैक्ट है, एक टच फॉर्म है, इंडिविजुअल्स की पोजेशंस है, आप उन पोजेशंस को डैमेज कर रहे हो। वर्क प्लेस में अगर हम लोग देखें तो उसमें सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस होती है ऑर्गेनाइजेशंस में। नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें देखें तो उसका आउटवर्ड जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हरासमेंट की, जो टारगेट होता है, जैसे जेंडर हो गया, रेस हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, इन बेसिस पे हम उसको टारगेट करते हैं। लेकिन वर्क प्लेस बुलिंग में क्या होता है कि हम लोग अक्सर कॉम्पिटेंसी के बेस पे उसको बुली करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अक्सर जो सीनियर्स होते हैं वो अपने जूनियर्स को इस वजह से बुली करते हैं कि उनको एक ये डर होता है कि ये कहीं हमसे ज्यादा कॉम्पिटेंट ना हो जाए, हमसे ज्यादा पॉपुलर ना हो जाए, इतनी इंटेग्रिटी ना हो जाए कि ये हमसे सुपीरियर हो जाए। तो वो इस माइंड सेट या अपनी इस पावर को मिस यूज करते हैं और उसको बुली करते हैं कि ये हमसे नीचे ही रहे, हमारा हमसे ऊपर ना है, सुपीरियर ना हो। उसके बाद एक्ट ऑफ हैरेसमेंट जो वर्क है वो ऑब्वियसली वर्क रिलेटेड नहीं होता, मतलब अक्सर कम्युनिकेशंस होता है, स्टॉकिंग होता है, उसमें आप बहुत हैं, कोई भी आपका काम, अगर आपका काम नहीं है तो हरासमेंट है। मतलब वर्क प्लेस हरासमेंट में ये चीज आ जाती है कि आपकी वर्क रिलेटेड होती है, जिसमें आप उनसे अनरीजनेबल डिमांड्स कर रहे हैं, आप उनकी परफॉर्मेंस पे क्रिटिसिज्म करके उनको बुली कर रहे हैं। हालांकि वो परफॉर्मेंस उनकी अच्छी होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप कोई पॉइंट निकाल के तो उसको एक मिस्टेक के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी और के काम का क्रेडिट आप किसी और को दे रहे हैं। जबकि हरासमेंट में ये नहीं होता। हरासमेंट में कोई भी वर्क रिलेटेड हरास नहीं करता आपको, वो इंटेंशनली उसमें एक उसका माइंड सेट होता है, उसने हरास करना है आपको। हरासमेंट के अगर हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो उसमें ये है कि द इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हरासमेंट वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन।
उसमें उनकी ये होता है कि ड्यूरेशन किस तरह की है, कितने स्वेयर लेवल पे उनको हरास किया गया है, किस तरह से वो इन्फ्लुएंस हुए हैं, ये सब चीज़ें डिफरेंस होती हैं। हर इंडिविजुअल की एक अलग होगी कॉन्सिक्वेंसेस कि वो किस तरह हरास हो रहा है उनके एनवायरनमेंट का। कॉमन जो अगर हम लोग देखें जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं जब आप हरास हो रहे हो, तो उनकी मेंटल जो हेल्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है। हमारी सोसाइटी में एक टैबू बन गया हुआ है कि हम लोग उस बारे में बात ही नहीं करना पाते। अगर कोई हमें जनरली ऐसा बता रहा है कि हरास हो रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, उसको कहते हैं चुप कर जाओ, इस बारे में बात नहीं करो, किसी को बताना नहीं। अगर हम लोग उन्हें यही बताते हैं कि फला प्लेस पे हमें हरास किया गया है, तो ये उसका ये सॉल्यूशन नहीं ढूंढा जाता कि उसको उस प्लेस पे जाकर उनसे बात की जाए या कोई एक्शन किया जाए, कोई स्टैंड लिया जाए। उल्टा हम विक्टिम को ये कहते हैं कि आइंदा उस प्लेस पे मत जाना। कोई जॉब पे अगर हरास हो रहा है तो हम लोग विक्टिम को उसका सॉल्यूशन बताने के बजाय हम लोग ये कहते हैं कि उस जॉब छोड़ दो, कोई हल ढूंढो या अवॉइड करो, वो कब तक करेगा बंदा। ये चीजें हमारी सोसाइटी में है। तो जब बंदा उससे इस ये होता है कि हरासमेंट जो हमारे हैं ना, उनके एक माइंड लेवल हो जाता है, वो ये चीज़ किसी से शेयर नहीं कर पाते। उससे क्या होगा, उनकी मेंटल हेल्थ भी डैमेज होगी, उनकी फिजिकल हेल्थ भी डैमेज होती है। जब वो अपने अंदर एक फियर, एक एंग्जाइटी उनमें डेवलप होने लग जाती है, उनमें स्लीप डिस्टर्बेंस काफ़ी होती है कि रातों को वो नींद में डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, भूख नहीं लगती, हेडेक्स इशू काफ़ी ज़्यादा होते हैं, स्टमक इश्यूज, छोटी छोटी और जो इलनेस होती हैं वो इनमें बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं। एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इंसान की अपनी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ एस्टीम होता है ना, वो लॉस होने लग जाती है, क्योंकि वो अपने आप पे एक उसका जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, एक अपनी जो सेल्फ स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। डिमोरलाइज्ड फील करता है, वो ह्यूमिलेटेड फील करता है। उसके बाद अगर वो कहीं भी इंस्टीट्यूट में या कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसको हरास किया जा रहा है, तो वो वहाँ पे जाता नहीं है, वहाँ पे वो जाने से घबराता है, एक खौफ होता है। उस वहाँ पे अगर वो कोई काम कर रहा है या कोई भी एक्टिविटी है, उसमें वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। उसके बाद एक और आउटब्रस्ट ऑफ मिसप्लेस्ड एंगर। इसमें ये है कि जो हरास हो रहे हैं उन इंसान में एक गुस्सा होता है, लेकिन वो ऑन द स्पॉट वो अपना एंगर, वो गुस्सा नहीं निकाल पाते। उसका रिजल्ट क्या होता है कि किसी और सिचुएशंस में वो अपना गुस्सा निकालते हैं, जिसके लिए वो अनएक्सेप्टेबल होगा। मतलब वो मिसप्लेस्ड एरिया है, वो मिसप्लेस्ड जगह है, वहां पे गुस्सा नहीं करना था, लेकिन क्या था कि उनके अंदर उस सिचुएशंस की वजह से वो गुस्सा सप्रेस्ड हो गया था, तो वो उन्होंने वहां पे निकाल दिया। ये चीज बहुत हो जाती है। फिर एब्सेंटिज्म और सिक लीव बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद एक डिसबिलीफ उनके अंदर आ जाता है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये इट इज नॉट व्हाट आई थिंक इट इज, पीपल डोंट रियली डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। एक डिसबिलीफ होता है कि लोग ये नहीं कर सकते हैं, इस तरह के काम नहीं करते। एंगर उनमें होता है कि गुस्सा उनको आता है कि ये अगले इंसान का राइट नहीं है, वो ये क्यों कर रहा है, उनको ये हक नहीं है कि वो इस तरह का काम करे, लेकिन वो ऑन द स्पॉट उस हरासत के वो गुस्सा नहीं निकाल पाते। सेल्फ ब्लेम बहुत ज़्यादा हो जाए। अगर आजकल आप देखें तो बहुत से लोग जो विक्टिम्स होते हैं वो एट द एंड अपने आप को ही सेल्फ ब्लेम करने लग जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी हमारी इस तरह की है कि वो हरासमेंट, जो हरास कर रहा होता है उसको कुछ नहीं कहती, वो उल्टा विक्टिम को कहती है कि तुम वहां पे क्यों गए, तुमने जरूर कुछ किया होगा, तुमने कोई ऐसा बिहेवियर शो किया है। ऑल दिस थिंग्स आर कॉमन, जिससे जो विक्टिम्स होता है वो खुद को ही सेल्फ ब्लेम करने लग जाता है। लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। पावरलेसनेस वो बहुत फील करता है, उसको लगता है कि उसकी जो डिसीजंस पावर है वो कम है। नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप दिस, कोई भी मुझे यकीन नहीं करेगा, कोई भी ये नहीं रोक पाता, उसमें ये थॉट्स डेवलप हो जाती हैं। कॉमन अगर हम लोग देखें कि फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स क्या होते हैं, फीलिंग सिक है, स्वेटिंग और शेकिंग बहुत ज़्यादा होती है, पाल्पिटेशंस है, डिस्टर्ब स्लीप्स होती है, स्वेयर हेडेक्स है, स्टमक बाउल प्रॉब्लम से, लॉस ऑफ लिबिडो। अच्छा, ये एक बेसिक टर्म है लिबिडो का। अगर हम लोग बात करें, लिबिडो बेसिकली है क्या, सेक्स ड्राइव। अगर इसको अगर आप दूसरी टर्म में देखें ना, तो एक सेक्स ड्राइव है, हर इंडिविजुअल के अंदर एक सेक्स ड्राइव होती है। इस टर्म को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि सेक्सुअल डिजायर्स हैं, हर इंसान में होती है। जब कोई भी हरासमेंट को एक्सपीरियंस कर रहा है ना, तो उसमें ये चीज़ कम हो जाती है। उसकी इमोशंस और जो मेंटल एनर्जी होती है ना एक इंसान की, सेक्स से रिलेटेड या इमोशन से रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक चीज़ को बहुत गलत तरीके से एक्सपीरियंस कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस उस चीज़ से गलत हो रहा है, तो वो इस चीज़ से अवॉइड करने लग जाता है।
माइनर एचेस और पेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम लोग इमोशनली बात करें तो एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, पैनिक अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक चिड़चिड़ापन इंसान में बहुत रहता है हर टाइम। डिप्रेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंगर, गुस्सा उसको बहुत आता है, क्योंकि वो गुस्सा ऑन द स्पॉट पॉइंट पे वो नहीं निकाल पाता, लेकिन अपनी अदर लाइफ एक्टिविटीज़ में वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। मर्डर्स फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। बहुत से इंसान, मैंने एक अपनी लाइफ में खुद हरासमेंट विक्टिम देखा था, हरासर विक्टिम्स, तो उसका था, उसको मर्डर बहुत करने का दिल करता था। एक उसकी एक फीलिंग होती थी कि मैं मार दूं, लेकिन इतना हेल्पलेसनेस और पावरलेसनेस होता था कि वो कर नहीं पाता था, लेकिन उसमें एक फीलिंग जरूर रहती थी। लैक ऑफ मोटिवेशंस बहुत ज़्यादा है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होती है, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन बहुत हो जाती है इनकी, क्योंकि जब उनको पता होता है कि कोई भी मेरे साथ स्टैंड नहीं ले रहा, कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी मुझ पर बिलीव नहीं करेगा, तो वो फिर सोसाइटी से आइसोलेट हो जाते हैं, उनका सर्कल बहुत कम हो जाता है। अगर हम लोग देखें ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हो रही हैं, कोई इंसान या कोई भी बंदा ऑर्गेनाइजेशन में हरासमेंट एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसकी फिजिकल क्या होंगी, हाई स्टाफ टर्नओवर्स होंगे, उनकी जो सिकनेस एब्सेंस होंगे वो बहुत ज़्यादा रेगुलर या प्रोलॉन्ग होती जाएंगी, क्योंकि उसका फिर दिल ही नहीं करेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जाए या अपने वर्क प्लेस पे जाए। उसको यही डर होगा कि आज मैं जाऊंगा तो आज फिर मेरे साथ कुछ इस तरह का हो जाएगा। स्टाफ लुकिंग टेंस और ट्रबल होंगे, एटमॉस्फेयर उसका चेंज होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी कि वो अपने वर्क पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाएगा। इमोशनल अगर हम लोग देखें तो Ma'am, are you there? Ma'am, you are explaining quite well, but I have a question कि हमें different consequences देखने पड़ते हैं। अब जैसे अगर हमें रॉन्ग कॉल्स आ रही है या रॉन्ग नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं, तो हमें उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? मतलब अगर हम उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, उनको रिप्लाई करते हैं, तो फिर वो हमें बार बार डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं, और अगर हम लोग उनको रिस्पॉन्स शो नहीं करते हैं तो दे स्टार्ट कॉलिंग अस एंड मैसेजिंग अस फ्रॉम डिफरेंट नंबर्स। सो हाउ टैकल दिस सिचुएशन? इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। हमारे यहाँ पे अक्सर क्या कहा जाता है कि रॉन्ग कॉल्स आ रही है, छोड़, खुद ही बंदा तंग पड़ जाएगा, कितने नंबर चेंज करेगा कि आप ब्लॉक कर दो। मतलब ये कॉमन है, मैंने खुद भी, टू बी ऑनेस्ट, मेरा एक टाइम पे ऐसा था कि कितना बंदा कॉल्स करेगा, कितने मैसेजेस करेगा, खुद ही थक जाएगा। नहीं थकते, आपको एक मेंटली टेंशन और टॉर्चर आप होते रहते हो, आप उसको अवॉइड भी करो ना। इसका सबसे अच्छा हल यही होता है कि अब तो हमारी लीगल पॉलिसीज इतनी ज़्यादा हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है या इस तरह के सेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, जो FIA या इस तरह की रिपोर्ट्स आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो। तो अगर आप पहली दफ़ा ही एक्सपीरियंस करो तो उस पर चुप करने की बजाय या उसको वहीं पे इग्नोर करने की बजाय, अवॉइड करने की बजाय, आप उसके बारे में कंप्लेन करो। ठीक है? ओके, थैंक यू मैम, कैरी ऑन। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें हैरेसमेंट के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, वो ही कि ये ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं वो फिजिकल हेल्थ तो उनकी डैमेज होती है, उसके साथ उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। वो हर टाइम एंग्जाइटी और डिप्रेशन में रहते हैं, उनकी सुसाइडल आइडिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर इनमें डेवलप हो जाता है कि वो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाते, वो अपने वर्क प्लेस में, अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाते। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स हो जाता है, क्योंकि वो एक ट्रॉमा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उसके बाद उनकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, साइकोलॉजिकल वेलबींग जो है वो उनकी नहीं ठीक रहती। अब अगर हम लोग बात करें हाउ टू हैंडल, हाउ टू ओवरकम दिस, ठीक है, उसमें अगर कोई भी इंसान या कोई भी पर्सन बुली हो रहा है, उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, विक्टिम है वो, तो सबसे पहले ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ह्यूमन, हम लोग ये कहते हैं कि हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारी ऐसी है, तो हम भी सोसाइटी का पार्ट हैं। अगर हम लोग एक चीज कॉमन करना शुरू करेंगे तो वो चीज आहिस्ता आहिस्ता कॉमन हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान शुरू करेगा तो उसके पीछे होगा, इसी तरह आप भी स्टार्ट करें कि अगर आपको पता चल जाए कि कोई भी हरास हो रहा है तो उसको मोटिवेट करें इस चीज़ पे कि इस बारे में तुम चुप नहीं रहो, स्टैंड लो। किसी ऐसे इंसान को बताओ जो तुम्हारे साथ स्टैंड ले, जो साथ खड़ा हो और उस जो हरास कर रहा है उसकी कंप्लेन करें।
सबसे यहाँ पे बात आती है कि अगर किसी इंस्टीट्यूट में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हरास किया जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो, जैसे डिफरेंट वर्क्स में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है कि ये लीगल टर्म्स हैं, आप उन पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, ठीक है। उसमें वहाँ पे एक ही चीज़ की ऐड होनी चाहिए कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी अपने एम्प्लॉयज से या जो कोलीग्स हैं उनके साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करेंगे या काम में आप ऐसे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो आपको ये पनिश किया जाएगा। उसके बाद ऑफिशियल लीगल पॉलिसी जो हैं वो हरासमेंट के रिगार्डिंग जो है वो होनी चाहिए। फिर कंपनीज जो हैं उनको एक ऐसा सेक्टर या एक ऐसा एनवायरनमेंट भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट जो भी है उसको ये रखना चाहिए कि अगर कोई इंडिविजुअल ड्यूरिंग वर्क प्लेस, ड्यूरिंग इंस्टीट्यूट, ड्यूरिंग एनी वर्क अगर उसको हरास किया जा रहा है तो उसको पता हो कि मेरे यहाँ पे वर्क प्लेस में या मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा सेक्टर या है जो हरासमेंट से रिलेटेड कंप्लेंट्स एक्सेप्ट करते हैं। अगर मैं उनको मतलब उस एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज को या अपने जो भी आपके नाम घर है उनको ये मेक श्योर करें कि अगर आप ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कुछ भी फील कर रहे हैं, तो आप इस बारे में चुप करने के बजाय हमें आके कंप्लेन करें उस बंदे की। उसके बाद आप नॉर्मल भी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हैं, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं हैं और आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप उसको फौरन रिपोर्ट करें, क्योंकि अगर हम लोग रिपोर्ट करेंगे तो ही चीज़ें कम होंगी। अगर हम लोग इसको बिल्कुल चुप कर जाएंगे, अवॉइड कर देंगे, तो ये चीज़ें इस तरह से चेंज नहीं होंगी। एक और चीज़ एज ए साइकोलॉजिस्ट या एज ए नॉर्मल पर्सन करनी चाहिए कि हमें उस बारे में बात करनी चाहिए। एक्सेप्ट व्हाट हैपेंड, व्हाट दिस मीन्स इज टू वैलिडेट योर एक्सपीरियंस। जो हो रहा है उसको मिनिमाइज कभी भी नहीं करें, एक्सक्यूजेस नहीं बनाएंगे, ठीक है ये हो रहा है होने दें या नहीं हो सकता, उसको एक्सेप्ट करें, उसके बारे में बात करें। किसी भी इंसान के बारे में अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपने जो शेयर्स थॉट्स हैं उनको आप शेयर करें, अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको करें। सबसे पहली बात है स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। खुद पे ब्लेम मत करें आप, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि कुछ लोग आप बिल्कुल परफेक्ट भी होंगे ना तो तब भी वो आपको हरास करेंगे। Bring closures to your experiences, कि अपने जो आसपास हैं उनको इस बारे में बताया जाए, और ये एक्सपीरियंसेस अगर आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है तो उसको यूज किया आप दूसरों की भी हेल्प करें। थैंक यू, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। Thank you so much, ma'am, for sharing your valuable insights with us. Now it's time to turn towards the second part of this webinar, which is psychological factors of child abuse. This will be explained by our speaker, Sir Arish Kumar. Yes, sir.